دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ کون؟ علی اصغر بول رہا ہوں۔ کچھ اچھا بولیے جناب۔ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین بفضلہ تعالی وکرمہ مولا۔ نور العرفان کی عبارت پر کچھ بات کرنی تھی۔ ہمیں پہلے تم اپنا مسلمان ہونا جب تک ثابت نہیں کرو گے، جب تک تم کوئی بات کرو گے نہیں ہوئے گی، اس لیے کہ تم مسلمان ہونا۔ تم ہمارے نزدیک کافر ہو نا۔ اچھا، جو مسلمان کہے، ہیں؟ جو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے؟ نہیں، کون مسلمان کہتا ہے تم کو؟ نہیں، جو بھی کہے مسلمان، جو ہمیں مسلمان کہے تمہیں کوئی مسلمان نہیں کہتا ہے، اور جو بھی بات کرو عبارت بھیج کر کے کرو، کوئی تمہیں مسلمان نہیں کہتا ہے۔ انہیں گھبرانا یار، سنو میں اللہ کا شکر ہے کہ تھانوی لعنتی جہنمی سے تو گھبراؤ نہیں، تمہارے جیسوں کی کیا بساط ہے۔ حوالہ بھیج کے، حوالہ ایسے نہیں بھیج کے، میرے واٹس ایپ، میرے اسی پہ، ہاں ایک منٹ رک، واٹس ایپ تھوڑی صحیح ہے، ہاں ایک منٹ، واٹس ایپ تھوڑی صحیح ہے، ہاں ایک منٹ۔ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں آپ مسلمان ہیں؟ تمہارے نزدیک، تمہارے مولویوں کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین ہم اور ہمارے اکابر عاشق رسول ہیں۔ جی تو جھول صاحب، جو یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے نام کا ذبیحہ کرتے تھے۔ پہلے سنو تو ہلو، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تمہید ایمان میں، تمہید ایمان کا تم نے ذکر کیا ہے نا۔ ہاں، تمہید ایمان میں اس بحث سے تم نے کیا سمجھا ہے؟ میں نے سمجھا ہے، ہاں جو سمجھا ہے وہ بھیجو، تمہید ایمان پہ 2 منٹ طے کر لینا، 2 منٹ طے کر لیں۔ پہلے تم عبارت جو بھیجو اس کو پڑھو اور ہم کو سمجھاؤ۔ دیکھو آپ چلاؤ گے، اب مجھے پتا ہے۔ ارے یار سنو نا، تم نے جو بھیجا ہے عبارت اس کو پڑھو اور مجھ کو سمجھاؤ کیا ہے یہ۔ موقع نہیں ملے گا اور اپنی گستاخی پر پردہ ڈالنے کا موقع نہیں۔ ارے یار ہماری یہ تو دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب دیوبندیوں کو کافر کہہ دیا تو یہ ضد میں دیوبندی کافر کہنے لگے۔ اب اگر اشرف علی تھانوی قبر سے نکل کر کے بریلویوں کو مسلمان مانے تب بھی جو ہے تم لوگ کافر کہو گے اشرف علی تھانوی کو کہ جاؤ پھر سے قبر میں سو جاؤ، بریلوی کافر ہے۔ تمہارے گھر سے ہمارا مسلمان ثابت ہے۔ اس کو جو تم نے سنو جو تم نے تمہید ایمان بھیجا ہے میرے کو نا، اس کو پڑھو اور پڑھ کر کے ہم کو سمجھاؤ۔ اور ایک بات سنو، کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ سنو اب جب مجھ سے بات کرو تو بھائی میرے لیول سے بات کرو گے نا، تم اپنے علم کے اعتبار سے بات کرو گے تو بھائی تم دیکھ لو تمہارے علم کے معیار کا کوئی ہے تو بات کرو، تم اگر مجھ سے بات کرو گے تو میرے معیار کے مطابق بات کرو گے۔ کفر کی کتنی قسمیں ہیں پہلے تو اس کو تم ثابت کرو گے۔ دوسری بات ہے کہ اگر کسی انسان کو کافر کہا جاتا ہے تو کس وجہ سے کافر کہا جاتا ہے، کون کون سے وجوہات کی بنیاد پہ کافر کہا جاتا ہے، اس کو بھی ثابت کرو گے۔ ٹھیک، اچھا تمہید ایمان جو تم نے مجھ کو بھیجا ہے، تمہید ایمان شریف کا جو تم نے حوالہ دیا ہے، اس تمہید ایمان کی عبارت کو پڑھو گے اور پڑھ کر کے تم نے کیا سمجھا ہے وہ ہمیں سمجھاؤ گے۔ چلو اب پڑھو عبارت۔ ماشاء اللہ۔ ہاں تمہید ایمان پڑھو۔ اب خاموش رہو یار۔ انہوں نے کہا تم کفر کی قسمیں بتاؤ۔ ہاں کفر کی، ہاں تو کفر کی قسمیں بتا رہا ہوں، بولو۔ اور تمہید ایمان میں کیا لکھا ہے؟ ارے کفر کی پہلے قسمیں بتاؤ نا۔ ارے پہلے جب کفر کی قسمیں بتاؤ گے جبھی تو تمہید ایمان پوچھا ہے۔ ارے کفر کی کتنی قسمیں ہیں جب بتاؤ گے جب تک تمہید ایمان کی وضاحت ہوئے گی۔ اب دیکھو یہ بھاگ رہا ہے، باوقار سامعین دیکھیے یہ اب یہ بھاگ رہا ہے۔ ارے کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ارے کفر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اہتمام مفتی محمد کلیم مصباحی ابن اعظم وہ بتاؤ تمہارے علم کے مطابق۔ صفحہ نمبر 36 پر۔ ارے یہ لگ جائے گا یار، یہ لگ جائے گا۔ کفر کی کتنی قسمیں ہیں تم کو چیلنج ہے، بتاؤ نا۔ اور قولی اور فعلی سے معلوم ہوا کہ کفر کی 2 قسمیں ہیں، قولی اور فعلی۔ قولی اور یہ لکھا ہے یہاں پہ 2 ہے۔ اب ارے کفر کی قسمیں بتاؤ۔ دیکھو یہ کفر کی قسمیں نہیں
किस्में करो, बयान करो, तारीफ बयान से उलझाने की कोशिश करते हैं। अरे कुफ्र की किस्में बताओ। मैंने असगरी बेगम, असगरी बेगम, कुफ्र की किस्में बताओ। बात कर रहा हूँ तमहीद ईमान। अरे कुफ्र की किस्में बताओ। सफर नंबर 133 है। देखो सामने चिल्ला रहा। अरे कुफ्र की किस्म बताओ। जाहिल अजल मिनल कायनात ज़करुल इमाम, तुमको कुछ मालूम नहीं है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की। अच्छा, इबारत में भी रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबारत में भी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। अल्लाह की तकसीर से मना फरमाया है। इसमें देखिए ये झूठ बोल रहा है। इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी, यहाँ पे दहलवी लिखा है, ये अपने तरफ से इबारत में रहमतुल्लाह अलैह किया। ये कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी ने अहलुल्लाह, कह रहे हैं अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकसीर से मना फरमाया है। अहले ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या मुराद है? और तुम कह रहे हो तुम्हारा मुसलमान हमारी किताब साबित है। अब मैं बोलूं, झगड़ा क्यों है? हाँ, अब मैं बोलूं, क्यों कर रहे हो? अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, सामने एक अब मैं बोलूं, अब मैं बोलूं, ये 2 किताब भेज रहा हूँ। इन्होंने मुझे बोलने के लिए कहा। अरे अब मैं बोलूं, बोल रहा हूँ, अब मैं बोलूं, पीर मेहर अली साहब की किताब। अरे मैं बोलूं में लिखा है बंदी और बरेलवी दोनों क्या है? मुसलमान है। तो हमारे घर तुम्हारा हमारा मैं सुन लेता हूँ जब तुम अनइंटरप्टेड बोल। सुनो, अब अगर तुम हमें अनइंटरप्टेड बोलने दोगे तो मैं तुमको समझा दूंगा, लेकिन तुम बोलने नहीं दोगे तो मुझे मजबूरी है कि तुम भी बोलोगे, मैं भी बोलूंगा। तुम ये बात पेश कर दो, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी ये होगी। ठीक है, अब मैं बोलूं, मैं बोलूं। अभी तक क्या कर रहे थे? अब मैं बोलूं। अभी तो तुम बड़बड़ कर रहे थे। बड़बड़ की दुकान तुम न कर रहे थे। अरे तुम अरे मैंने तुमसे जो सवाल किया उसका जवाब नहीं दिया तुमने अभी तक सवाल जो तुम्हारे ऊपर जो सवाल कायम हुआ, तुमने अभी तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं बोलता हूं, सुन लो। अभी तुम्हारे इल्म में एक नई बात आ जाएगी, तुम जान जाओगे कि इल्म किसे कहते हैं। तुम्हारे पास इल्म तो है नहीं, तुम जो है तुम लोग तो मतलब हसद में, जलन में आकर के बरेलवियों से मुनाजरा करते हो। हकीकत तो यह है कि बरेलवियों से तुम्हारा मुनाजरा करने की तुम्हारी हैसियत और अहलियत भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे अकाबिरों ने तुम्हारे दुबुर को कूच दिया है। अब सुनो मेरी बात को, सुनो। हेलो, जबान देखे। हाँ, अब तुम्हारे, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि बरेलवियों को आशिक रसूल और क्या नाम है, क्या क्या मान करके रहमतुल्लाह अलैह और क्या क्या मान करके तुम लोग की जबान पे जो है पर्दादरी कर दी है। अब मैं बता देता हूँ, तमहीद ईमान को तुमने समझा नहीं, मैं समझा देता हूँ, आज से ये जान जाओगे। सुनो। हेलो, नहीं करूंगा मैं। अरे सुन लो, पहले जान जाओ कुफ्र की 2 किस्में होती हैं, कुफ्र लुजूमी और कुफ्र इल्तिजामी। पहले तुम्हारे ये इल्म में है नहीं, समझे? कुफ्र लुजूमी उसी को जो है क्या नाम है, कुफ्र कलामी और कुफ्र फिqही भी कहते हैं। तुम्हारे इल्म में ये बात नहीं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे इल्म में ये बात डाल देता हूं, जान लो। और अब यहाँ जो लिखा है, तुमने अपने तरफ से पहले तो खयानत किया है इबारत में। इसमें लिखा है कि इमाम ताइफा इस्माइल दहलवी, तुमने अपनी तरफ से रहमतुल्लाह अलैह बढ़ाया है। तमहीद ईमान में रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखा हुआ है, तुमने अपनी तरफ से रहमतुल्लाह अलैह बढ़ाया है। इस बात का इकरार कर लो कि कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता। इसलिए हुक्म नहीं करता कि ये कुफ्र लुजूमी है। कुफ्र इल्तिजामी का मतलब यह है कि जिसके कुफ्र में, चूंकि आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला वरदहु अन्ना इस्माइल दहलवी के जमाने में नहीं थे। उसकी जो इबारत है उसमें वो क्या कहना चाहता है, क्या मंशा है, चूंकि एक बात से कई बातें निकलती है। और तुम्हारे जो 4 गलीज मौलवी हैं, थानवी, नानोतवी, गंगोही और अम्बेठवी, इनके कुफ्र पे आला हजरत ने इल्तिजाम किया है। उन लोगों से जाना है, पूछा है, मंशा समझा है। मंशा समझने के बाद जब इन लोगों ने कहा कि हाँ जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है, तब उस पे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कुफ्र इल्तिजामी किया है। और ये है कुफ्र लुजूमी। कुफ्र लुजूमी से मुराद क्या होता है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी इस्माइल दहलवी के दौर में नहीं थे कि उसकी इबारात पे वो सवाल कर सके। तो कुफ्र लुजूमी पे आला हजरत फाजिल बरेलवी की दूसरी इबारत भी तुमको भेजना चाहिए थी, जब तुमने तमहीद ईमान का भेजा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है कि इस्माइल दहलवी जो है वो, उसको मैं यजीद की तरह समझता हूं। अगर कोई उसको काफिर कहता है तो मैं उससे मना भी नहीं करता। यहाँ पे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने खुद की राय बताई है। और यहाँ पे एक बात और, क्या कहा कि मैं तकफीर नहीं करता, यानी कि तकफीर नहीं करता, तो इससे तुमने ये कहा समझा कि उन्होंने मुसलमान माना। ये इबारत
से तुमने समझा कहाँ? अहले ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मैं इबारत पढ़ देता हूँ, नहीं करता कि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, चूंकि इस्माइल दहलवी तो बज़बान अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से था ही, कलमा पढ़ने वाले, तुम भी कलमा पढ़ने वालों में बज़ाहिर हो, तो तुम्हारी तकफीर हम इसलिए करते हैं कि तुम्हारे ऊपर मैं इल्तजाम पाता हूं। और यहाँ पे ये लुजूमी मसला है कि भाई वो तो बज़ाहिर इस्माइल दहलवी अहले ला इलाहा इल्लल्लाह में से था, ये और बात है कि आला हजरत के दौर का नहीं था। अब आला हजरत ने उस पे जो है इल्तजाम जो है फाजिल बरेलवी ने नहीं किया, उस पे जो है कुफरे लुजूमी का हुक्म दिया है। और यहाँ पे जब तुमने ये कहा कि तकफीर नहीं करता, तो ये बताओ कि यहाँ पे मुसलमान कहाँ कहा है इस्माइल दहलवी को? तुमने अपनी तरफ से जो है रहमतुल्लाह अलैह इस इबारत में जो है ऐड किया, तो इसका कौन देगा ये बताओ? और तुमको ये भी इबारत भेजना चाहिए थी कि जहां पे फाजिल बरेलवी ने ये तक कह दिया है कि मैं उसको जो है यजीद की तरह समझता हूं, अगर कोई उसकी तकफीर करता है तो मैं उसे मना भी नहीं करता, मैं अगर कोई उसे काफिर कहता है तो मैं उसे मना भी नहीं करता। अपनी राय आला हजरत फाजिल बरेलवी की अपनी राय, जहां तक कि और कुफ्र ईमान का मसला जब भी तुम जानते हो कि कुफ्र और ईमान के मामले में कब तक बोलोगे? पहले इसका इकरार करो कि तुमने खयानत किया है, पहले इसका इकरार करो। अरे पहले इसका इकरार करो। तुमने अच्छा रहमतुल्लाह अलैह बढ़ाया इसकी, हाँ सुनेंगे रहमतुल्लाह अलैह, तुमने हाँ अभी सुनेंगे, मैं पक्की बात बोल रहा हूँ। तुमने रहमतुल्लाह अलैह अपनी तरफ से खयानत की ना, तमहीद ईमान में रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। चलो ठीक है, अरे पहले बोलो ना, तमहीद ईमान में रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। मैं बोलता हूँ। अरे तमहीद ईमान में रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, खयानत क्यों किया? मैंने ये नहीं कहा कि तमहीद ईमान में। अरे जब तुम इबारत पढ़ रहे थे तो क्या कहाँ से इबारत पढ़ रहे थे, तो तुमने उसमें रहमतुल्लाह अलैह क्यों ऐड किया? अब मैं किस तरह इत्मीनान से सुन रहा हूँ। हाँ चल बोल। मैं इतना इत्मीनान सुना हूँ। अरे बोल न रे, अरे बोल, तू सुन, बोल। इसने एक बात कहा है कि तुम्हें मुनाजरा का हक नहीं है, ठीक है? मुनाजरा का हक इसका मुजद्दिद तो नहीं था, इसलिए फतूहात में सामिन जो जुमला इसने बोला है उस तरतीब वार मैं जवाब दे रहा हूँ। फतूहात रज़विया मौलाना मोहम्मद जुल्फ़िकार नईमी के किरालवी, ठीक है, उसकी किताब है। इसमें लिखा है कि 14 मुहर्रम 1326 हिजरी 17 फरवरी 1908 को देवबंदी मकतबा फिक्र के एक अदना से मौलवी मदरसा इमदादी दरभंगा के मुदर्रिस देवबंद के नाज़िमत बनाए गए। थानवी साहब की दिफा में थानवी साहब के खुद साख्ता वकील की हैसियत से आला हजरत से मुकाबला आराई के लिए मैदान में उतर पड़े है मुनाजरा के लिए, और अपनी तारीफात तालियों पर मुश्तमिल तवील खत लिख डाला और उसमें आला हजरत दावत मुनाजरा भी दे बैठे। इनकी औकात है। आगे लिखा है सफा नंबर 64 के अंदर, अरे झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल, हवाला भेज, जरूरी नहीं जाना। अरे कज़्ज़ाब से भाग गया, अरे कज़्ज़ाब, सयाक छोड़ के सयाक सबाक छोड़ करके भागने वाला आदमी, हवाला भेज। रहमतुल्लाह अलैह कहाँ लिखा है? मैंने कब कहा कि तमहीद ईमान के अंदर नहीं, जब तुम अच्छा तो इबारत कौन सी पढ़ रहा था? इबारत कौन सी पढ़ रहा था? तमहीद ईमान की पढ़ रहा था या तहज़ीरुन नास की पढ़ रहा था? इबारत कौन सी पढ़ रहा था? अरे इबारत किसकी पढ़ रहा था? तहज़ीरुन नास की पढ़ रहा था या तमहीद ईमान की पढ़ रहा था? ये तो बताते जा। क्या कहा इसने? अरे इबारत किसकी पढ़ रहा था? तमहीद ईमान या तहज़ीरुन नास? जब तमहीद ईमान की इबारत पढ़ रहा है तो हुबहू इबारत पढ़ेगा। तुमने जब तमहीद ईमान आला हजरत फाजिल बरेलवी की पढ़ी, उसमें इस्माइल दहलवी को रहमतुल्लाह अलैह कहा, इसका मतलब रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत ने कहा है, और ये तुम्हारी जो है फरेब और तुम्हारा झूठ जो है ये वाज़ेह हो गया। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम को फहश गाली देना है और उनकी शान में अदना है। बाबू तुमको मैंने कुफ्र पहले तुमको जो कुफ्र की 2 किस्में बता दिया है, उसी में तुम उलझ गए, मर गए। अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कि कुफ्र लुज़ूमी और कुफ्र इल्तिज़ामी में तुम धंस गए। और फाजिल बरेलवी ने इस्माइल दहलवी को मुसलमान नहीं कहा है। फाजिल बरेलवी ने अपनी राय पेश की अपनी तहकीक की बुनियाद पे कि इस्माइल दहलवी की मैं तकफीर इसलिए नहीं करता है। फाजिल बरेलवी ने अपनी राय इस पे पेश की कि मैं इसलिए तकफीर नहीं करता हूँ कि चूंकि इस्माइल दहलवी के दौर में फाजिल बरेलवी नहीं थे। वो कहना क्या चाहता था, उसकी मंशा क्या है, उसकी इबारात में फाजिल बरेलवी ने मतलब ये सोचो कि फाजिल बरेलवी का कलम कुफ्र किसी इंसान को काफिर कहने में कितना मोहतात हुआ करता था कि फाजिल बरेलवी बहुत आसानी से किसी को काफिर नहीं कहते थे। इसका मतलब तो तुमको इतना ही मान लेना चाहिए कि तुम्हारे जो 4 मौलवियों पे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कुफ्र का फतवा दिया है तो वो बहुत सोच समझ करके दिया होगा, वरना अगर ऐसे ही
आला हजरत फाजिल बरेलवी को किसी को काफिर कहना होता तो तुम्हारे जो है महमूद ताइफा को फाजिल बरेलवी ने जो है काफिर कह दिया होता। फाजिल बरेलवी ने उसको इस्माइल दहलवी को अपने अगर ऐसे काफिर कहना होता तो कह चुके होते, लेकिन उनका कलम कितना मोहतात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हारी ही इबारत से तुम्हारी शिकस्त साबित हो गई, तुम्हारी ही इबारत से तुम्हारी शिकस्त साबित हो गई। किसने कह दिया? अरे अच्छा, ये एक बात बताओ कि फाजिल बरेलवी का कलम कितना मोहतात है, कितना मोहतात है कि जिसके बारे में जिसकी राय जाने बगैर फाजिल बरेलवी ने उसकी तकफीर भी नहीं की है, अपनी राय पेश करते कि मैं तो उसकी तकफीर भी नहीं करता। अब तुम ही इबारत भेज रहे हो। अब सोचो कि थानवी और नानोतवी और गंगोही और अम्बेडवी को काफिर कहने में आला हजरत ने कितना गौर खोज किया होगा, जब जाके काफिर कहा होगा। अब तुम्हारे इल्म, सुनो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे इल्म की ये बात नहीं है, समझे लाला। इल्तिजामी कुफ्र लुज़ूमी इल्तिजामी नहीं है। अरे कुफ्र लुज़ूमी और इल्तिजामी क्या? किस्म बयान करो, मैंने किस्म बयान कर दिया। कुफ्र लुज़ूमी और इल्तिजामी की तारीफ कर दो ना, तुम्हारी इतनी से बात साबित हो जाएगी। ये इल्म नहीं है तूने, मैं जो हवाला भेजा है और कुफ्र की 2 किस्में बताई, बता क्या वो गलत है? क्या भेजा है? क्यों नहीं करता है? क्या भेजा है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ, तेरे मौलवी की किताब और इबारत जगह में साबित, तेरा हर सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन तुम तो अच्छा चल गुमराह लोगों के तुम्हारी अच्छा चल एक काम करना। अरे सुनना, बड़बड़ की दुकान सुन। कुफ्रे कौली और कुफ्रे फेली की, अरे कुफ्रे कौली और कुफ्रे फेली की तारीफ कर देना, तब अभी बात समझ में आ जाएगी। तुम्हारे सवाल बात कर रहा हूँ, जवाब दो। अरे यार, कुफ्रे लुज़ूमी और कुफ्रे इल्तिजामी की तारीफ करते ये बात तुमको समझ में आ जाएगी कि फाजिल बरेलवी का कलम कितना मोहतात था कि जिसकी राय को जाने बगैर फाजिल बरेलवी ने उसकी तकफीर करने से अपनी राय देखो। और फाजिल बरेलवी ने थानवी, नानोतवी, अम्बेडवी और गंगोही को अगर काफिर कहा है तो बहुत गौर खौज के बाद कहा है, वरना अगर सिर्फ ऐसे ही फाजिल बरेलवी का कलम काफिर किसी को कहता तो तुम्हारा इस्माइल दहलवी भी नहीं बच पाता। लेकिन फाजिल बरेलवी का कलम ऐसा नहीं था। वो कुफ्रे लुज़ूमी की पहले तारीफ कर कि भाई कुफ्रे लुज़ूमी कहते किसको है, उसके बाद उस इबारत को समझ, जो तमहीद ईमान शरीफ की इबारत है, उसके बाद तुमको बात समझ में आ जाएगी। पहले कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर, अब इधर उधर भागने नहीं दूंगा। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। कुफ्रे लुज़ूमी किसे कहते हैं? कुफ्रे लुज़ूमी किसे कहते हैं? कुफ्रे लुज़ूमी, इसकी तारीफ कर। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। अब 2-2 मिनट बात करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। ये 2-2 मिनट की अगर बात करेगा तो शरायत तय कर, मुनाजरे की शरायत तय कर, दिन तय कर, तारीख तय कर और जगह तय कर, वहाँ मुनाजरा आके किया जाएगा। तुम्हारे मौलवियों के कुफ्र पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जहाँ कहेगा मैं वहाँ मुनाजरा करूंगा, लेकिन पहले कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। हमारे घर से साबित। अरे कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर, कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ, कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ, तुम्हारे घर साबित है। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ सकते हो, कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ, हमारे अकाबिर को तुम काफिर कह रहे हो, कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। अरे वो तमहीद ईमान की जो इबारत है वो पूरा कुफ्रे लुज़ूमी पे मामला अटका हुआ है। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। तुम्हारा है, ये तुम्हारे नजदीक, तुम्हारे अरे तमहीद ईमान शरीफ की जो इबारत है वो पूरा मामला कुफ्रे लुज़ूमी पे टिका हुआ है। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर, कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। काफिर का है तुम्हारा। अरे कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। पूरा तमहीद ईमान शरीफ की जो इबारत है वो पूरा कुफ्रे लुज़ूमी पे टिका हुआ है। तुम्हारे बड़बड़ की दुकान में नहीं सुनूंगा। मैं एक मौजू पे बात कर रहा हूँ, एक मौजू पे। ये अंदाज़ गुफ्तगू जो है ना, अली असगर को कई हजार मर्तबा धूल चटा चुका हूँ। मैं तो ये दावा करता हूँ कि तुम अपने थानवी को भी कब्र से लेकर के आओगे, उसको भी ज़ेर कर दूंगा। अब उसको लाओगे कहाँ से, हालांकि वो तो मर के मिट्टी में मिल गया। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। तमहीद ईमान शरीफ की इबारत कुफ्रे लुज़ूमी पे टिका हुआ है। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। तमहीद ईमान शरीफ की इबारत कुफ्रे लुज़ूमी पे टिकी हुई है। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। कासिम उनका पूरा। अरे कुफ्रे लुज़ूमी इधर उधर मैं सुनूंगा ही नहीं यार, मैं सुनूंगा नहीं क्या बोल रहा है वो सब। इधर उधर बड़बड़ की दुकान में नहीं सुनूंगा। फोन पे इतनी बात नहीं, फोन पे जब जो तुमने इबारत भेजी है कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर और तमहीद ईमान शरीफ मुझको समझा। मैंने तो हालांकि सामीन को समझा दिया है। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर। हाँ तू पढ़ते रह, तू ये बड़बड़ की दुकान करते जा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी फिलवक्त। तो अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरा लेना देना है कुफ्रे लुज़ूमी और तमहीद ईमान शरीफ। हमारे अभी नहीं, इससे कोई लेना देना है। अभी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अभी मेरा लेना देना है तमहीद ईमान शरीफ और कुफ्रे लुज़ूमी। कुफ्रे लुज़ूमी की तारीफ कर।
जवाब दो। कुफरे लुज़ूमी की तारीफ कर, का ज़बिया खाना, कुफरे लुज़ूमी की तारीफ कर। अरे इधर उधर मौजूद तू चेंज करेगा, मैं मौजूद चेंज करूंगा। मैं तुमको जानता हूँ लाला। अरे बेटा मैं तुमको जानता हूँ। कुफरे लुज़ूमी की तारीफ कर दे, कुफरे लुज़ूमी की तारीफ कर। कुफरे लुज़ूमी किसे कहते हैं? कुफरे लुज़ूमी किसे कहते हैं? लेकिन नबी सल्लल्लाहु कुफरे लुज़ूमी किसे कहते हैं? तू पढ़ते जा, तू बड़बड़ की दुकान करते जा। बुतों के नाम का ज़बिया। अब इसके ऊपर जो है थानवी का भूत सवार हो गया है। अब ये बड़बड़ करेगा, सुनेगा नहीं। थानवी का जो जिन है वो इस पे सवार हो गया है। मुशरिक और काफिर कहा ज़बिया। अरे कुफरे लुज़ूमी की तारीफ करते जाना। चल अब तू खाली इबारत पढ़ते जा। मैं जानता ही नहीं कौन सी इबारत पढ़ रहा है, वो तू ही पढ़ रहा है, तू ही जान। अगर इबारत भेज करके तू मुझसे बात कर ले। अभी तमहीद ईमान की इबारत भेजा है, इस पे मैंने तुझको रगेत दिया है।